Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Now, open your Pearl's textbook. Open your page number 43. Today, we will do a new chapter. The title is Tubby, the Fat Cat. So let's start. Word 1. Whisper, snore, pause, upstairs. Whisper means to speak softly in someone's ear. किसी के कान में धीरे से बोलना उसे बोलते हैं whisper. Snore, खर्राटे लेना. Pause, कैच के फूफिट. Upstairs, सीढ़ियाँ. And here you have to draw the hands of the clock to show when you go to sleep, and draw the hands of the clock to show when you wake up. In this, you have to make the hands of this clock at the time when you sleep and when you wake up. आपको ये दोनों क्लॉक्स में उनके हैंड बनाने हैं उस टाइम के जिस टाइम पर आप सोते हो और जिस टाइम पे आप मॉर्निंग में उठते हो. अगर आप रात को 10 बजे सोते हो तो आपको हैंड्स बनाने हैं एक 10 पे और बड़ी वाली 12 पे, तो 10 बजे like that. Now let's start the chapter. Andy was a 7-year-old boy. He loved to run and play. He never ever wanted to go to bed. Andy was a 7-year-old boy. Andy, this is Andy. Andy एक 7 year का बॉय है. He loved to run and play. उसे दौड़ना और खेलना बहुत पसंद है. He never ever wanted to go to bed. उसे बेड पर जाना कभी नहीं पसंद. उसे लेट सोना पसंद है, जल्दी सोना नहीं पसंद. His father said, "It is important to sleep and rest." His mother said, "How will you get up in time for school?" His father said, Andy के father बोलते हैं, "It is important to sleep and rest." सोना और रेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट यानी बहुत ज़रूरी है. His mother said, "How will you get up in time for school?" एंडी की मॉम बोलती हैं, अगर आप अभी सोओगे नहीं. हाउ विल यू गेट अप इन टाइम फॉर स्कूल? आप टाइम पर सुबह कैसे उठोगे स्कूल जाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल हियर एंडीज फादर सेड, टाइम टू स्लीप एंडी. हिज मदर सेड, इट्स बेड टाइम. एंडी के फादर बोलते हैं, अब सोने का टाइम हो गया है एंडी. उनकी मम्मा बोलती है, इट्स बेड टाइम. बट एंडी क्या बोलता है, 5 minutes मोर प्लीज़. 5 मिनट और रुकिए, मुझे देखो एंडी खिल रहा है. बोलता है 5 minutes मोर प्लीज़. One weekend, Andy and his parents went to visit Grandpa. Grandpa heard all about it and said, "I think I have an idea. Tubby, my fat cat, can help." One weekend, Andy and his parents went to visit Grandpa. एक वीकेंड एंडी और उसके पेरेंट्स ग्रैंडपा के यहाँ पे विजिट पर गए. Grandpa heard all about it and said, ग्रैंडपा ने एंडी की सारी शिकायतें सुनी कि वो टाइम पर नहीं सोता है, रेस्ट नहीं करता है. ग्रैंडपा ने सब सुना. आई थिंक आई हैव एन आइडिया. ये सब सुनने के बाद एंडी के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है. टबी, माई फैट कैट कैन हेल्प. टबी, जो मेरी एक फैट कैट है, वो शायद हेल्प कर सके. Andy's parents took the cat home with them in their car. Tubby was a slow, fat cat.
Most of the time, no one knew where he was. Andy's parents took the cat home with them in their car. एंडी के पेरेंट्स कैट को लेके अपने साथ कार में घर चले गए. टबी वॉज अ स्लो फैट कैट. जो टबी था वो बहुत ही स्लो और एक फैट कैट था. मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन नो वेयर ही इज़. काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि किसी को नहीं पता होता था कि टबी कहाँ है. That night at bedtime, Andy again did not want to go to bed. His parents waited to see if Tubby would do something to make him go to bed. Nothing happened. That night, उस रात at bedtime, Andy again did not want to go to bed. उस रात जब सोने का टाइम हुआ, एंडी एक बार वापस अपने बेड पर नहीं जाना चाहता था. His parents waited to see if Tubby would do something to make him go to bed. एंडी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने वेट किया और देखा कि टबी इसमें कुछ कर सकता है ताकि एंडी अपने बेड पर चला जाए. Nothing happened. पर कुछ नहीं हुआ. Grandpa said Tubby would help, said Andy's father. Hours later, Andy finally decided to go to bed. Grandpa said Tubby would help, said Andy's father. Andy के फादर बोलते हैं कि ग्रैंडपा ने तो बोला था कि टबी हेल्प करेगा. Hours later, Andy finally decided to go to bed. कुछ घंटों के बाद एंडी डिसाइड करता है कि वो फाइनली अपने बेड पर अब सोने जाएगा. But what a surprise! When he entered his bedroom, what a surprise! उसे सरप्राइज होता है कि जब वो अपने बेडरूम में एंटर करता है. Tubby was spread out on his bed. He was snoring like a train. Andy tried to shift Tubby, but he did not move him, not even an inch. That night, Andy hardly slept. Tubby pushed him into one corner of the bed. Tubby was spread out on his bed. जब एंडी अपने रूम में एंटर होता है तो जो सरप्राइज मिलता है, और सरप्राइज क्या होता है, जो टबी जो फैट कैट है वो एंडी के बेड पर फैल के सो गया है. एंड ही वॉज स्नोरिंग लाइक अ ट्रेन. और जो टबी था एंडी का कैट वो ट्रेन की तरह खराटे ले रहा था. एंडी ट्राइड टू शिफ्ट टबी बट ही कुड नॉट मूव हिम, नॉट इवन एन सिंगल इंच. एंडी ने टबी को शिफ्ट करने के लिए यानी एक अपने बेड से हटाने के लिए उसे पुश करने की ट्राई की, पर एंडी टबी को एक इंच भी नहीं हिला पाया. दैट नाइट एंडी हार्डली स्लेप्ट. वो रात एंडी बहुत मुश्किल से सोया. टबी पुश हिम इनटू वन कॉर्नर ऑफ द बेड. टबी ने एंडी को बेड के एक कॉर्नर पे पुश कर दिया. द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड. एंडी वॉज टायर्ड एंड स्लीपी बट टबी वॉज इन हिज बेड व्हेन ही वेंट अप. द नेक्स्ट डे अगले दिन द सेम थिंग हैपेंड. अगले दिन भी सेम थिंग हुई. एंडी वॉज टायर्ड एंड स्लीपी बट टबी वॉज इन हिज बेड व्हेन ही वेंट अप. एंडी बहुत ही थक गया था और उसे नींद आ रही थी, पर आज भी कल की तरह टबी एंडी के बेड पर था जब वो ऊपर गया. ऑन द थर्ड डे एंडी डिसाइडेड टू गेट इनटू बेड बिफोर टबी डिड. That night, as soon as his parents said, "Now it's bedtime," Andy ran upstairs and jumped into bed. His parents could not believe it. They knew nothing about Tubby sleeping in Andy's bed, so they did not understand why Andy went to bed on time. They were just happy that he did. Can you guess where the Tubby slept that night? On the third day,
यानी 2 दिन तो सेम हुआ, टबी एंडी के बेड पर जाके सो जा था। पर थर्ड डे, तीसरे दिन, एंडी डिसाइडेड टू गेट इनटू बेड बिफोर टबी डिड। एंडी ने डिसाइड कर लिया था कि वो टबी से पहले अपने बेड पर चला जाएगा। दैट नाइट एज सून एज हिज पेरेंट्स सेड नाउ इट्स बेड टाइम, एंडी रन अपस्टेयर्स एंड जंप्ड इनटू बेड। उस रात एंडी के पेरेंट्स ने जैसे ही बोला कि सोने का टाइम हो गया, वैसे ही एंडी सीढ़ियों से दौड़ा और जाके अपने बेड पर कूद गया। His parents could not believe it. उसके पेरेंट्स को बिलीव नहीं हुआ कि सिर्फ एक बार बोलने से एंडी फटाफट ऊपर दौड़ के गया और अपने बेड पर लेट गया। They knew nothing about टबी sleeping in Andy's bed. उन्हें जो 2 दिन से टबी एंडी के बेड पर सो रहा था उसके बारे में एंडी के पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था। So they did not understand why Andy went to bed on time. So उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एंडी अपने बेड पर टाइम से कैसे चले गए। They were just happy that he did. बस वो खुश थे कि एंडी अपने टाइम पर बेड पर सो गया। Can you guess where टबी slept that night? क्या आप गैस कर सकते हो उस रात टबी कहाँ सोया? Like this, you have to revise the whole chapter. You have to read the whole chapter. आपको ये पूरा चैप्टर रीड करना है. Do your work regularly. Thank you.